Okay. So, I don't want to go to the slide just yet. We'll come back to the main slide. So, what is product development life cycle according to you? What do you understand by product development life cycle? So, I will tell you, I will ask you this question a little differently. When we were setting up CIPD, CIPD नाम तो ठीक है, but there was always, someone would say Center for Intelligent Product Development, someone else would say Center for Intelligent Product Design, and then I insisted, no, it is Center for Intelligent Product Development. Now, what is the difference between design and development then? Now think, what is a product development life cycle? Okay, so what is development? Okay, what about others? ओके, इंटरेस्टिंग. सो एक कह रहा है कि डिजाइन is one aspect of the entire development life cycle, but there are many other steps. The other one is saying design is just an idea, but development is making it happen. Okay, so that design is more abstract, development is more detailed. Okay, और देखो, कभी भी किसी भी क्लास में अगर तुम्हारे को ऑलरेडी वो सब्जेक्ट आता होता तो तुम क्या उस क्लास में बैठे होते? नहीं बैठे होते ना. तो अगर तुम कभी किसी क्लास में गए हो तो सब एटलीस्ट प्रोफेसर तो समझता है कि तुम्हें वो सब्जेक्ट नहीं आता, और जो तुम्हारे साथ लोग बैठे हैं उनको भी नहीं आता. तो अगर आप बोलोगे और गलत होगा तो कोई बुरा नहीं मानने वाला, ना ही कोई आपके बारे में कोई एक नेगेटिव इमेज अपने साथ ले जाने वाला है. सो आपको जो भी समझ है, जो भी आपको पता है, एटलीस्ट बोलो. उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर डेवलप होगी. सी वी आर वन कोहॉर्ट, वी आर वन ग्रुप. हम कोई अब अलग अलग नहीं होने वाले हैं. अब जब एक साथ आ गए हैं तो आ गए हैं, जुड़ गए. ठीक है, तो डोंट हेजिटेट. अगेन आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन अगेन. व्हाट डज product development life cycle according to you? What do you understand by the term development, product development over there? Okay, so idea से लेके, we start from the stage of idea से लेके उसको मार्केट तक ले जा पाना, that is product development. और यहीं जब पहले कोई कह रहा था कि सीआईपीडी को सेंटर फॉर इंटेलिजेंट प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन में क्या रह जाता? हम शायद उसको डिजाइन करते, सारे प्रिंसिपल्स लगा के भी डिजाइन करते, बट उसको मार्केट तक या बाहर तक आगे तक ना ले जाते. आर यू विद मी? दैट इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोग्राम एंड एनी अदर प्रोग्राम दैट यू विल फाइंड इन द कंट्री टुडे. रियली, एनी अदर प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि आप अपने करिकुलम में भी देखो, कॉलेज के करिकुलम में भी देखो, व्हाट डू वी लुक एट? हाँ भाई, जो प्रोजेक्ट में कोर्स प्रोजेक्ट हुआ उसमें कुछ डिजाइन कर दिया, इधर कुछ डिजाइन कर दिया, उधर कुछ डिजाइन कर दिया. We are never all ever considering taking it to the final stage, to the user, where someone would use it. And that is the limitation. That is where people say there is a huge gap between academia and industry. And this program is there to bridge that gap, to get you ready for industry in a way. Okay. So that was why I insisted, it has to be Center for Intelligent Product Development, because we will go through the entire product development life cycle, not just design. Okay. So this is a slide from ISA. ISA is one of our partners, but this is a slide that they use to share how electronics are manufactured. Hmm? So
There is a customer's application idea. Someone says, "Oh, I want a." जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार सोचा तो उसने कहा, "I want a phone where I don't have to press push buttons. Everything is a screen." मतलब people want to see things, they want to visualize things. Hmm? So that was an idea. That idea goes into an IP और SOC development. तब तक आप लोग पता नहीं, तब शायद आपने फोन्स देखे भी नहीं होंगे। तब तक जो फोन्स थे वो फीचर फोन्स थे। फीचर फोन्स तो आपने देखे होंगे, पुश बटन एंड छोटू सी स्क्रीन। दैट छोटू सी जो डिस्प्ले था उसको ड्राइव करने के लिए एनी माइक्रो कंट्रोलर वुड डू, एनी माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। बट जो ही मेरे को पूरे फोन की साइज की स्क्रीन बनानी है एंड वो भी कलर्ड डिस्प्ले बनाना है, दैट वाज व्हाट स्टीव जॉब्स सेड। कलर्ड स्क्रीन्स आ रही थी, नोकिया वगैरह की कलर्ड स्क्रीन्स थी, सैमसंग के भी थी, बट स्टिल स्मॉल ones and a very simple microcontroller or microprocessor could handle that size of a screen. As soon as Steve Jobs said, "nahi, full screen colored," what happened? Oh, now the existing chips don't meet the requirement. Either I go and use an Intel processor, which was hugely power hungry, है ना? जो डेस्कटॉप का प्रोसेसर है उसको तो कभी भी उसने लो पावर के लिए बनाया नहीं हो, तो इट वाज ऑल ट्यून फॉर परफॉर्मेंस ओनली। Either I use that processor or there is nothing in the market. So what to do? There is a clear gap. There's a clear gap that there is a need, but a product doesn't exist. So that means that we will come up to a stage of what is called as IP और SOC डेवलपमेंट। SOC समझते हैं क्या होता है? सिस्टम ऑन चिप। We come to a stage of SOC डेवलपमेंट। अबे यार इसको want to hide this, या हो ही नहीं रहा? नहीं हो रहा उसका टैप करके भी। तब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, लेट इट बी। सो वी थिंक ऑफ डेवलपिंग अ एसओसी, एक चिप बनाना है। ओके हम इस क्लास में चिप नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है, बट आई एम टेकिंग यू थ्रू अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोकंट्रोलर्स। विल बी यूजिंग माइक्रोकंट्रोलर्स और विल बी यूजिंग अदर चिप्स। तो उनके लिए क्या होता है, अभी यहाँ पे हमने एक नीड आइडेंटिफाई करी, देयर इज नो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर दैट। ओके आई से आई वांट टू डू अ एसओसी डेवलपमेंट। हमने एक डिजाइन टीम में बैठ के एक एसओसी डिजाइन करा। उस डिजाइन को हमने सिलिकॉन पे लेके गए, उसको हमने पहले स्कीमेटिक लेवल पे डिजाइन करा, सिमुलेट करा। सिमुलेट करने के लिए हमने, यू हर्ड दिस टर्म एफपीजीएस, सबने, we put them on FPGAs। we say कि अच्छा अगर मैं ये सारी फंक्शनैलिटी डालूंगा तो ये चीजें आपस में साथ में काम कर सकती हैं। I put it on an FPGA, I tested it, then I said okay this product would work। I used EDA tools, we will use lots of EDA tools in our work, and designed the layout। that layout was fabricated on a silicon wafer। now look at it from here। silicon wafer कहाँ से आया? सिंपल सैंड थी, उससे हमने सिलिकॉन इनगॉट्स बनाए। So those of you who have done DVD, you know this, but many of you are not done DVD. तो silicon ingot होता है कि, so sand is silicon dioxide। उसको आप मेल्ट करोगे, उसके अंदर से ऑक्सीजन को उड़ा दोगे, ठीक है, रिएक्ट करोगे, प्योर सिलिकॉन आप बाहर निकाल लोगे। बट कभी भी आप कोई भी मटेरियल अगर ऐसे निकालते हो तो इट इज पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब it can be in any many number of crystals will exist and they will not be aligned or oriented। तो हम क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़े से क्रूसिबल में, बहुत बड़े से अवन में इस सारे पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को डाल देते हैं और हीट करते हैं, सब कुछ मेल्ट हो जाता है। फिर हम एक छोटू सा क्रिस्टल अपने डिजायर्ड ओरिएंटेशन में उसमें डिप करते हैं और उसको धीरे धीरे करके बाहर निकालते हैं। और जब बाहर निकालते हैं तो रोटेट भी करते जाते हैं ताकि एक सर्कुलर शेप आती जाए। तो आप देखेंगे, अगर आप इस इनगॉट की शेप देख रहे हो, देखो यहाँ पे बिल्कुल
टिप है, ऐसा पॉइंटेड टिप है जैसे पता नहीं अभी चुभ जाएगा, because that was the smallest crystal that we had put in there, and we slowly pull it out. The rate at which we pull it out, that defines the radius of the crystalline structure below. So all this one full ingot is one crystal. It may have defects, but it is one crystal. नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में कभी आपने वो श्वरोस्की प्रोसेसर्स वगैरह सुने थे? याद है? पढ़ा था कभी? क्या करते थे, क्या उसमें उस समय आपको कुछ और नहीं समझ में आया होगा, बस किसी ने आपको ये बताया कि एक पतला सा रिंग होता है, उसको एक तरफ से चलाते हैं दूसरी तरफ तक ले जाते हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं सारी एक तरफ मूव कर जाती हैं, याद है? तो ये इनगॉट जब आती है तो इनगॉट के ऊपर फिर वो प्रोसेस चलाया जाता है ताकि जो भी डिफेक्ट हैं वो धीरे 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 करके एक कोने में चले जाएं और वहां से हम उन डिफेक्ट्स को, उन इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं. सो वी हैव अ वन कंप्लीट क्लीन इनगॉट. अब उसको हम स्लाइस करते हैं, टक 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 स्लाइस करते हैं, एंड व्हाट वी गेट इज सिलिकॉन वेफर्स. एंड सिलिकॉन वेफर्स पे फाइनली चिप्स फैब्रिकेट होते हैं. तो जो हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया था वो उस पे फैब्रिकेट होगा. आप लोग जब पीसीबीज बनाएंगे तो उसके भी पीछे पीसीबी की बनाने की जर्नी एक अलग होगी, एंड फिर आपका डिजाइन उस पर बनेगा. जब वो फैब्रिकेट होगा उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, आपके लिए उसकी सोल्डरिंग होगी, हम आएंगे उस सब पे. एंड देन वो वेफर को आप एक एक वेफर, पूरे वेफर को टेस्ट करते हो, एक एक वर्किंग डाई को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उन डाइज को पिक करके पैकेज करते हो. खाली वर्किंग डाइज पैकेज करी जाती हैं, नॉन वर्किंग डाइज नहीं करी जाती. क्यों? जो बिकना ही नहीं मार्केट में उसको क्यों और खर्चा क्यों करोगे उस पर? नॉन वर्किंग डाई है, इट्स यूजलेस. तो उन पे एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करना? एंड देन चिप लेवल एक बार पैकेज हो जाता है, फिर चिप लेवल टेस्टिंग होती है. चिप लेवल टेस्टिंग में अगर आपको दिखा चिप फेल कर रहा है तो वो शिप नहीं होता. जब शिप होता है तो प्रोडक्ट में असेंबल होता है, और प्रोडक्ट फिर फाइनली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में था जो हमें बनाना है. बहुत अ, जल्दी में बताया. दिस प्रोसेस ऑफ फ्रॉम एन आइडिया टू अ प्रोडक्ट would take 3 years in VLSI industry, that is. Was it would take at least 1 year to build that kind of an SoC. Then it has to be manufactured, tested. To build matlab design. Then it has to be manufactured, tested. The product has to be tested and refined. And then कहीं 2-3 साल बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है. दैट इज फॉर अ कंज्यूमर प्रोडक्ट. व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के लिए अगर आपको एसओसी तक को खुद बनवाना है, it would take at least 5 to 10 years to come to the market. Why? Because those SOCs have to be tested for reliability over extended period of time. Now, why did I want to show this slide to you? To bring home one fact, that whatever we do in this program, we cannot say or demand कि मेरे लिए एक नया SOC बना दो. At least not yet. Because that will take a long time to come. हमारे पास उतना टाइम नहीं है. So whenever you come up with a product idea, even if a smart SOC would make a lot of sense for it, you cannot depend on it for validating your idea. You will have to first make that idea happen with whatever is available on the shelf. It is called commercial on the shelf, COTS. Based on commercial on this off the shelf components, you have to build your products. That is what we will be building our products on over here. ठीक है? So हम इस लूप में नहीं जा सकते. हम यहां से एक स्कीमेटिक स्टेज पे जाएंगे और स्कीमेटिक स्टेज से हम यहां आएंगे. बिकॉज दिस लूप इज अ वेरी लॉन्ग लूप, बट दिस लूप इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, फेयरली कॉम्प्लेक्स.
If you would go into that loop, you are talking about VLSI engineers. When you're talking this loop, you're talking about embedded systems and product engineers. Many of you are from EVE branch. You anyways are looking at that loop separately. But in this 6 months, we are looking at this shorter loop, which has tremendous opportunities anyways. Are you with me? And the shorter loop engages huge a variety of skills. इसी रूम में हम देखें तो we have design people, we have mechanical के नहीं है, mechanical के भी होने चाहिए. तो जीवी पंत वाले, अगर आपको अपने कोई मैकेनिकल के दोस्त पता है जो इस तरह के प्रोग्राम में आके बेनिफिट ले सकते हैं, because we at Triple IT don't have a mechanical program. But if you have friends who are in mechanical engineering and you think can benefit from this program, bring them in. But वो आजकल के टाइम में लाना पड़ेगा. So, mechanical, computer science, electronics, every one of us is important to develop products. VLSI में अलग range of skills और अलग range of jobs हैं, but over here it's a completely different game altogether. VLSI में आप जो भी काम करोगे, you will just do a small piece of the entire puzzle. But over here, you are actually making the product happen and see its results, see customer feedback, everything yourself. It's a completely different kind of a joy. So अब हम आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जेनेरिक कॉन्सेप्ट पे. A product development life cycle starts with an idea where I see there is a need, but a product doesn't exist. And I have to develop this product somehow. So that idea is the first thing that we will work on for our final product in the first 3 weeks. Okay? We'll have workshops to help you ideate. As I said, within this week itself, I will ask you to join my creativity class where I will be introducing TRIZ to everyone. So you join that. We will also have ideation sessions following up after that. Once we have an idea, we want to see if it will work or not. So what do we need to do? We need to create a prototype for it. But किस तरह का प्रोटोटाइप? देखो, अगर मैंने कहा कि मैं पूरा सोल्डर करके चिप्स बनाऊंगा, मतलब असेंबली, मतलब पीसीबी बना के ये सब करूंगा, दैट इज गोइंग टू टेक एंटायर 6 months. So you're not talking about that kind of a prototype. You're talking about a low fidelity prototype. Low fidelity prototype क्या होता है? Who will tell? आपको क्या पता है उसके बारे में? Similarly, easy to build होता है और अगर if we need any changes in that we can changes. इसने पीआईएस करा हुआ है एक्चुअली, इसलिए. गुड. सो फिग्मा यूज करा है आप में से किसी ने कभी? आप सोचो आपको पूरी वेबसाइट खुद डेवलप करनी हो, पूरा बैकएंड सब कुछ, वर्सेस फिग्मा में कुछ बनाना है. इट्स फार सिंपलर. इट शोज द एंटायर इंटरफेस. अब सोचो आपने वेबसाइट बना दी या ऐप बना दी पूरी की पूरी, अब मैं कहूं कि नहीं यार ये वाला बटन अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे ये कलर चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो. हाउ मच रीवर्क यू विल नीड टू डू. बट फिग्मा में ही अगर वो करना हो तो very quickly. So Figma in those terms is a low fidelity prototype of a user interface of a website. Similarly, we create low fidelity prototypes. First, लो फाइडेलिटी प्रोटोटाइप्स हम अपने यूजर्स को दिखाते हैं कि भाई अगर देखो ये बॉटल है, इसकी शेप ऐसे लगेगी. अब अगर मैं रियली में शीट मेटल से इस बॉटल को बनाने वाला हूँ, तो शीट मेटल इसका मोल्ड बनाना पड़ेगा, कितना कुछ और करना पड़ेगा, यू सी. बट अगर मैं कहूँ मैं इसको थर्मोकोल पे ही, आई विल जस्ट क्विकली सैंड पेपर से आई विल गिव दैट, और मैं उसको ऐसा टेक्सचर दे के आई गिव इट टू अ यूजर. हाउ डू यू फील अबाउट दिस बॉटल? हाँ, दिस लुक्स गुड. Once the user says yes, I go ahead and do something more about it. बट अभी अब थर्मोकोल से आप पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते. फिग्मा से आप एक्चुअली में कुछ ब्राउज कर सकते हो? नहीं कर सकते. But it gives you a sense of flow. How will my website flow? What will my user journey be? How will they experience the product? So low fidelity prototypes are something which are very important. And we will be working on low fidelity prototypes after our ideation stage. We will have low fidelity prototypes in the hardware and also on the software side of things.
So all of that we will look at. Then comes proof of concept. What does proof of concept mean? based on what I had, and we can actually show it. ओके, थोड़ा सा और अगर हम शब्दों के ही खेल में जाएं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज थ्री वर्ड्स पुट टुगेदर? Basically, showing any concept is actually implementable. ओके, For the people, what we are thinking that is useful and it has things we get. ओके. Yes, practical. सो देखो, प्रूफ, हमने जब एक आइडिया सोचा तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा उसके बारे में कि भाई इस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करेगी. अब जब स्टीव जॉब्स ने कहा कि पूरा स्क्रीन का फोन बनेगा, तो क्या लगता है उसके पास मतलब सब कुछ था? नहीं. पीपल, उसने सबसे पहले क्या करा होगा, उसने इंटेल का ही प्रोसेसर यूज करके चला के देखा होगा कि इतना बड़ा डिस्प्ले अगर मैं इस फॉर्मेट में चलाऊं तो चल रहा है. उस समय पेंटियम्स आते थे तो पेंटियम 4 ना यूज करके पेंटियम 1 उठाया होगा कि सबसे पुराने वाले से भी, मतलब क्योंकि आई जस्ट नीड टू रन अ डिस्प्ले, आई डोंट नीड टू रन अ फुल ऑपरेटिंग सिस्टम, और इवन इफ आई नीड टू रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आई कैन मेक अ लाइट वन. इंटेल का एग्जिस्टिंग ऑफ द शेल्फ चीज उठा के प्रूव करा होगा कि दिस वर्क्स. एम आई राइट? I can drive one full screen, I can do this, I can do that, I can have a very light operating system also operating if I have a processor of this kind of a strength. It was more powerful than what we finally make for the product, but it works. It can happen in this form factor also. I can make it happen. I want a better form factor, I want to make it cheaper, I need a SoC for that, but it works. So that is what is proof of concept. Proof of concept में आपकी जितनी भी assumptions होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ ये बड़ा मजेदार था. आइडिएशन सेशन हुआ तो किसी ने कहा कि जिस तरह से हमारा इंटरमिटेंट या रेगुलर हार्ट रेट चेक हो सकता है, सी इफ आई ऑल मेनी ऑफ यू माइट बी वेयरिंग स्मार्ट वॉचेस, तो स्मार्ट वॉचेस में आई कैन एंटर इनटू अ मोड जो कंटिन्यूअसली मेरा हार्ट रेट मॉनिटर करेगी. जब भी वो हार्ट रेट एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाएगा, इट विल आल्सो वाइब्रेट एंड टेल मी कि ओ रिड्यूस योर एक्टिविटी, रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स, थिंक अबाउट समथिंग एल्स, लिसन टू काम म्यूजिक, व्हाटएवर इट विल टेल मी और व्हाटएवर आई थिंक आई नीड टू डू, इट विल अलर्ट मी दैट आपका हार्ट रेट तेज हो रहा है. ठीक है. सो हार्ट रेट के लिए मॉनिटरिंग है. किसी ने कहा आई वांट टू डू अ सिमिलर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग फॉर ब्लड शुगर. दैट पर्सन वाज, क्योंकि दिख रहा है मॉनिटर अगर ये हो सकता है तो ब्लड शुगर क्यों नहीं हो सकती या बीपी क्यों नहीं हो सकता. ना आइडिया बनाया उसका, ऐसा एक लो फाइडेलिटी वो भी बना दिया कि घड़ी ऐसी होगी, ऐसे दिखेगी, कफ की तरह पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कर दिया. बट अब जब उसको नेक्स्ट स्टेज पे जाना था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे, नाउ दे हैड टू मेक इट वर्क. They needed some sensors, they needed to show something that it would work. That was when they realized that a technology to continuously monitor BP doesn't exist. क्यों? बीपी मेजर करा है कभी आप लोगों ने अपना या किसी और का? क्या करना होता है? यू हैव टू फर्स्ट, क्या कहते हैं, कफ के अंदर हवा भरनी होती है, प्रेशर बढ़ाना होता है, देन यू स्लोली रिड्यूस दैट प्रेशर. तुम थोड़ा सा इधर आगे पीछे आना है, पीछे आ जाओ, यू नॉट इवन विजिबल टू मी. एम आई विजिबल टू यू? ओके. सो प्रेशर बढ़ाना होता है कंटिन्यूअसली एंड देन यू मॉनिटर कि कब तक मेरे को हार्ट रेट सुनाई दे रहा है, हार्ट बीट सुनाई दे रही है. किसी ने वो स्टेथोस्कोप लगा के करा है मेजर, खेल खेल में ही, या खाली मशीन से ही पुश बटन करके करा है? हुँ? तो हार्ट बीट एक्चुअली सुनाई देती है. तो नाउ टू डू दिस आई हैव टू इन्फ्लेट, आई हैव, देयर इज सो मच मशीनरी दैट इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो अदर सेंसर अवेलेबल. तो देन दे हैड टू डू समथिंग एल्स. दे हैड अ प्रॉब्लम इन माइंड, उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि आई वांट अ कंटिन्यूअस बीपी मॉनिटर, बट इट डिडंट वर्क. तो ऐसा होता ही नहीं. ठीक है. तो a proof of concept means that we are able to resolve all the assumptions that we have made about the product, the user,
the availability of technology, the market, everything. A proof of concept should be able to prove to you that this idea is good. It should be able to resolve all your assumptions. Are you with me? So, proof of concept is not just a demonstration. When you do a proof of concept, you should clearly know that, okay, what is the most challenging environment in which my product would be? This situation. So, this is the situation I should be able to demonstrate working on my proof of concept. That is the that is how you define what your POC should be like. क्योंकि अदरवाइज कुछ ना कुछ तो वर्किंग दिखाई दोगे, बट यहां पे आप कह रहे हो प्रोडक्ट जाना है. समझ में आ रहा है फर्क की जो बात हम कर रहे थे? सो वी हैव टू एक्चुअली make it work in the real kind of a setting, even if emulated, but a real kind of a setting. Are you with me? That is what is proof of concept. Proof of concept is not just demonstrating कि हाँ भी मैंने चार तारें जोड़ दी और ये देखो काम कर रहा है. No. The purpose of a proof of concept is to validate all the assumptions that you had about the product. जब तक आप उन assumptions को clearly list down नहीं करते हो पहले स्टेप में, आप बस डेमो दे रहे हो, proof of concept नहीं बना रहे. That is a clear difference. ठीक है? So once the proof of concept works, then you say, okay, it means this product can happen. Now let me do the enclosure design. How will the product, मैंने लो फाइडेलिटी में दिखाया कैसा करेगा, बट नाउ अब जब मैं उसको रियली में बनाने वाला हूं, सपोज मेरे को अब यही बॉटल बनानी है. हाँ, और इस बॉटल के कैप के अंदर लेट अस से आई हैव टू पुट सम इलेक्ट्रॉनिक्स इन इट. तो अब अगर मेरे को इस शेप के ढक्कन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डालना है, तो I have only this much of space available to design and put my PCB, and my components should all fit into it. I get an idea that my PCB could be multi-layered PCB, not just a 1-2 layer. I may need 4 layers because this is the only space in which everything that I wanted to put has to be put. Are you able to see? So now, before we enter into the next stage of refining our product, I need to know what are the constraints on my design. I may come back and say that, okay, भाई ये दिख तो अच्छा रहा था, फर्स्ट स्टेज में तो पास हो गया, बट अब इसमें मुझे इतनी कम स्पेस मिल रही है पीसीबी बनाने के लिए कि दिस इज नॉट डूएबल. आई मे गो बैक टू द लो फाइडेलिटी प्रोटोटाइप स्टेज अगेन. आर यू एबल टू सी दिस? सो नाउ देयरफॉर जब भी आप लो फाइडेलिटी प्रोटोटाइप के स्टेज में रहते हो, तो आपको एक आइडिया पे लिमिट नहीं होना होता. आपके पास दो तीन होने चाहिए. इसके ऊपर आप यूजर से फीडबैक लो, आसपास दोस्तों से आप सब आपस में दोगे और बाहर से लोगे. टेक दैट फीडबैक एंड ताकि बाद में कहीं पे कोई चैलेंज आए तो आपको फिर वापस जीरो पे ना जाना पड़े. आपके पास एक ऑल्टरनेट था, या आप उसी ऑल्टरनेट को कहीं और फर्दर इवॉल्व कर सकते हो. ये वाला सेकंड बेस्ट था, ये वाला फर्स्ट बेस्ट था, इस वाले में रियली में मेरा सॉल्यूशन है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स क्या मैं वहां पे मर्ज कर सकता हूं. सो वी कैन डू ऑल दोस थिंग्स. आर यू विद मी? सो लो फाइडेलिटी प्रोटोटाइप इज नॉट अ स्टेज जहां पे आप कहो हाँ दिस इज द फाइनल फाइनल फाइनल. नो, इट इज लो फाइडेलिटी. I may need to pivot, and we should be able to pivot. देखो, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हु इज गॉड? यूजर. क्योंकि अगर यूजर प्रोडक्ट परचेज करके भी यूज नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्ट बेकार है. आर यू एबल टू सी दिस? जब तक आप एक कोर्स वर्क में होते हो, गॉड कौन होता है? टीचर. वो बोलता है ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, दैट इज व्हाट यू डेमोन्स्ट्रेट. बहुत सारे लोग उसी मोड में रहते हैं, वो समझते हैं कि जब हम प्रोडक्ट बनाने आ गए तो हम अब गॉड हो गए, क्योंकि अब तो हमारा प्रोडक्ट है, हम बताएंगे क्या करना है. दैट इज वेयर दे फेल. For product designers, God is user. user.
because they had a problem, they had a need. You, as an engineer, are solving that need. You're offering a solution to that particular problem. It is their problem. They are the ones who will tell what is right, what is not. आप उसे झगड़ नहीं सकते कि नहीं नहीं ये टेक्नोलॉजी अरे है अच्छी तो क्या हुआ, उसको नहीं चाहिए भाई. डू यू सी दैट? सो लो फाइडेलिटी प्रोटोटाइप एंड ऑल दोस थिंग्स, कभी भी किसी भी स्टेज पे if there is a feedback that this may not work, you should rethink. Okay, now in this particular cohort we have only 6 months. I may tell you that bhai, ab, we are already in fourth month. You go back to the low fidelity prototype stage now, we are going to be doomed. Okay, so don't do that. But in reality, it's better to go back there because मैंने क्या कहा था पहले वाली स्लाइड में, जो डाइस काम नहीं करती उनको पैकेज नहीं करते हम. They are no good, they will not be used. Why spend more time and energy on them? Now this still is a kind of academic program. Okay, so we may very consciously decide, ताकि आपको पूरा पीडीएलसी का एक्सपीरियंस मिले, we may consciously decide amongst us, two of us, four of us, कि भाई we understand this is not going to work, but I still want you to get the full taste. Let's go ahead and do it. We will have something in hand, we will pitch that, and we will have the idea. We already know this will not work, we will already have an improvement in mind, and that is what we will pitch. We'll get the funds to develop that also. But now let's get in this program, in this cohort, get the full experience of the PDLC. So we will do that. But finally, when you are a product developer, you will stop, go back, and then go forward. Are you with me? So कभी भी अगर हमें फीडबैक आ रहा है, देखो हम दुनिया में हर इंसान को तो खुश कर नहीं सकते. तो आप अगर किसी से फीडबैक लोगे, आपने सपोज 50 फीडबैक लिए, तो 2-3 लोग तो नहीं होंगे खुश, 5 भी नहीं होंगे. बट अगर 25 खुश नहीं है तो दिक्कत है ना. तो दैट इज हाउ हमेशा स्टैटिस्टिक्स पे प्ले करा जाता है, और ये वेटेड स्टैटिस्टिक्स होते हैं. सपोज मैंने एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ मैकेनाइजेशन बनाया, ठीक है, और मैंने फीडबैक लिया इस रूम में जो लोग बैठे हैं उनसे और 2 फार्मर्स से. इस रूम के सब लोग बड़े गागा हैं, अरे वाह फंडू फंडू फंडू. बट जो 2 फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं ये काम नहीं करेगा. क्या करा जाए? The weighted feedback says I have to stop, go back. Even if everyone else is in agreement, the real customer, the real user, उसका फीडबैक जो है वो बहुत मायने रखता है यूजेबिलिटी एस्पेक्ट्स में. ठीक है, देन सपोज आपने प्रोटोटाइप ही बनाया, लो फाइडेलिटी प्रोटोटाइप बनाया, आपने ये दिखाया एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बंदे को, उसने कहा वॉन्ट वर्क. एक ही बंदे ने कहा वॉन्ट वर्क, बाकी सबने कहा बड़ा सुंदर है. व्हाट विल यू डू? अगर मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपीरियंस से कोई बंदा कह रहा है दैट दिस काइंड ऑफ अ मोल्ड कैन नॉट वर्क एट स्केल, then you need to give it its due weight. Are you able to see this? And are you also able to realize that every time we have to actually take feedback from a very wide range of audience, not just the final user? हम जितना ब्रॉड इनपुट लेके आगे बढ़ेंगे उतना हमें रीवर्क कम करना पड़ेगा, है ना? Are you with me? So all these early stages, proof of concept and closure design. Now, once the enclosure is designed, now I know the shape of my PCB. Now I know what kind of physical space I have to solder my components. Now I can say, okay, I need SMT components or I need wired components. अगर बहुत सारी जगह है, I can as well do with wired, they are cheaper. But अगर नहीं है
तो आई विल नीड एसएमटीज। एसएमटीज पता है, सरफेस माउंट डिवाइसेस? नहीं पता, आ जाएगा, डोंट वरी, सब सीखोगे। ठीक है। सो ऑल दो एस्पेक्ट्स पीसीबी डिजाइन, क्योंकि पीसीबी डिजाइन में आपके एंक्लोजर में कितना हाइट अलाउड था, उसके हिसाब से आपको कंपोनेंट चूज करने पड़ेंगे। दैट विल अफेक्ट योर बिल ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो। बिल ऑफ मटेरियल्स क्या होता है? हमने सुबह भी बात करी थी बिल ऑफ मटेरियल्स की। व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल्स? It's all the components that will be used. List of all the components along with their cost. Now imagine I have a form factor जिसमें मेरे पास इतनी हाइट अवेलेबल है, मुझे कोई कैपेसिटेंस यूज करना है। आई कैन एज वेल यूज द रेगुलर कैपेसिटर जो आते हैं, वो थोड़े से सिलिंड्रिकल शेप वाले बड़े बड़े। बट अगर फॉर्म फैक्टर ये है फोन का, कैन आई यूज दैट कैपेसिटर? ऑब्वियसली दैट कैपेसिटर इज 5 रुपीज, एसएमडी कैपेसिटर इज 100, बट दिस फॉर्म फैक्टर रिक्वायर्स दैट। एंड इफ दिस कॉस्ट with this bill of materials doesn't fit my bill, my overall budget, कि भाई यूजर इज नॉट, मैं कितना सुंदर बना लूं, लेकिन जस्ट सुंदरता की वजह से यूजर थोड़ा मेरे को 2x प्राइस देने वाला है, मेरा सामान डबल में थोड़ा ना खरीदेगा। then it means I may have to compromise on the enclosure again, low fidelity prototype. Do you see? So as we will progress, more and more constraints will come in, and as those constraints come in, our product will become more and more mature. We'll need to redo stuff, but in every redo there is more learning that is happening. Are you able to see this? Are you now also able to appreciate how designing is different from product development? Because in product development, you add in so many more constraints as you proceed. In designing, आप proof of concept बना के happy थे, और proof of concept भी नहीं, आप एक demo बना के happy थे। proof of concept भी अपने आप में बहुत heavy चीज होती है। बनाने से पहले ही आपको सोचना होता है कि कौन कौन से सवाल इसके जवाब देना चाहिए। Then when you come to the proof of concept stage, I tell you, your POC will be ready for publishing a paper. That is why it happened. कि POC थी फर्स्ट 3 महीने के अंदर ही they had something that was worthy of writing a paper, because all these different dimensions were looked into. It was not just a demonstration, it was a technological proof of concept. Are you able to see this? So आप जितना कॉन्शियसली, जितना थॉटफुली POC स्टेज के लिए भी अपना रिक्वायरमेंट एनालिसिस, assumptions चैलेंजिंग एंड सब कुछ करोगे, उतना आपका मैच्योर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। देन once you've designed the PCB, you go into fabricating it. आपने सबने PCB देखा होगा, all of you have seen a PCB? So आपको दिखता है बीच में अंदर से कुछ कॉपर की वायर्स हैं, कुछ कुछ हैं, एंड देन यू सही लेके आने के assemble it. Assemble it का मतलब you put all the components on it, you solder it. Once you've done the assembly, you test it. Actually testing हर स्टेज पे है। You will realize that आप जब components को ऊपर चेपने भी वाले हो ना, उससे पहले भी आप हर कंपोनेंट को टेस्ट करना चाहोगे। इट्स इंपॉर्टेंट। सपोज एक फूका हुआ कैपेसिटर आपने सोल्डर कर दिया, आपको क्या लगेगा? आपका डिजाइन काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअली में खाली एक कैपेसिटर काम नहीं कर रहा था, एंड देन यू रियलाइज उसको डीबग करने में हफ्ता लग जाएगा। देयर इज अ प्रॉपर वे टू अप्रोच प्रोडक्ट डिजाइनिंग। एवरी स्टेज टेस्ट, then move forward, test, then move forward. Now you see the contradiction over here. When it comes to process, I'm insisting on you follow the process. But at the same time, I'm also asking you to be innovative and inventive. कि खुला सोचो, सोचना है, बट उस सोचने को, जब उस सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को मत वायलेट करो। आर यू एबल टू सी दिस? अदरवाइज आपने इतना खुला सोचा हुआ है, कहीं ना कहीं पे फेल हो जाएगा।
बट अगर आप प्रोसेस के साथ साथ चलोगे तो कहीं फेल होना भी होगा तो आपको पहले दिख जाएगा, आप उस फेलियर को पहले से प्लग कर सकते हो। अदरवाइज दैट फेलियर विल appear to you much later and it is a very costly thing. Are you able to appreciate this aspect? Everyone? Any questions until now? सर बोला फिर कोई अगर प्रोडक्ट हमारा आगे चल के टेस्टिंग में या फिर कहीं पे फेल हो रहा है तो हमारे को फिर से लो फैसिलिटी पे चलाना पड़ेगा। तो मतलब इसका क्या प्रोसेस है, मतलब हमारे ट्रेड ऑफ दिख रहे हैं कभी ना कभी तो हमारे उस लेवल पे नहीं हो पाएगी। सो देखो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अ, हमें हर बार हर चीज जीरो से नहीं शुरू करनी होगी। अब सपोज यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल्स देख के मुझे लगा यार ये जो कंपोनेंट है ना ये इतना कॉस्टली पड़ रहा है, बिकॉज मेरे को इसको आई हैव टू यूज अ बॉल ग्रिड पैकेज। बॉल ग्रिड पैकेज आता भी महंगा है और उसको सोल्डर करना असेंबली करना भी कॉस्टली होता है। अगर मेरे पास थोड़ा सा और स्पेस होता मेरे पीसीबी पे तो मैं रेगुलर पैकेज यूज कर पाता, 64 पिन पैकेज यूज कर पाता लेट अस से। नाउ दैट वुड बी चीपर। अब वो 64 पिन करने के लिए ना मेरे को थोड़ा सा ही स्पेस और चाहिए। कैन आई समहाउ इंक्रीज दिस डायमेंशन इन माय प्रोडक्ट अ लिटिल? तो ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा लो फाइडेलिटी प्रोटोटाइप फिर से करना है, बट हाँ इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखना है कि क्या पॉसिबल है। See, you already moved forward. It is already very refined. Every stage it refines more and more. Are you with me? But you will have to go back and do something in the previous stage also again. That you should be mentally open about. ये नहीं कि ये तो मैंने कर लिया अब तो यही है मेरे पास, ना जी कुछ यहाँ नहीं है। जब तक प्रोडक्ट नहीं बना तब तक आप सब कुछ बदल सकते हो। आर यू विद मी? अभी तो आप बहुत सस्ते में हो भाई। एक बार प्रोडक्ट बन के मार्केट में चला गया फिर वापस आया तो सोचो क्या होगा। अपडेट्स तो होते हैं किसी का प्रोडक्ट लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, ओवर द एयर अपडेट्स। भी होता है। सो अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अ, तुम्हारा लैपटॉप, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, लैपटॉप के अंदर एक डी रैम खराब हो गई। हम्म, अपडेट हो सकती है। कंपनी ऐसे लैपटॉप्स बना रही है, एक तो साथ में कंपनी कुछ देखेगी कि हमारा कमी किधर है, उसे प्रो करेगी। मैं इस लेवल बोल रहा हूँ। हम्म, तो तो अगर आपका प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ता है, इट इज अ ह्यूज कॉस्ट। इंटेल लर्नड इट द वेरी हार्ड वे। इंटेल ने सो मिड एटीज की बात है, आप लोग नहीं थे तब। इंटेल ने मिड, तब मैं भी बड़ा छोटा था, मुझे भी ये कहानी अपने लाइफ में वैसे नहीं पता, मैंने भी बाद नहीं पढ़ी, आप भी पढ़ सकते हो। तो इंटेल ने मिड एटीज में बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स या बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर की कंपनीज थी। मोटोरोला के भी प्रोसेसर्स थे, सबके प्रोसेसर्स थे, बहुत सारों के थे, ठीक है। इंटेल के भी थे। इंटेल वांटेड टू स्टैंड आउट। इंटेल ने कहा वी विल डू या इंटेल ने कहा दैट आई वांट टू डू अ मार्केटिंग ब्लिट्स सो दैट वी गेन मोर मार्केट शेयर। हाँ, तो इंटेल ने अपने कस्टमर्स को एक एग्रीमेंट करवाया कि व्हेन यू यूज आवर चिप यू विल पुट दैट इंटेल इनसाइड की चिप ऑन द टॉप। सो नाउ everyone who used Intel chip had to put Intel inside, and people knew this was an Intel machine. And अगर एक्सपीरियंस अच्छा था they would next time want an Intel machine. Basically उसने एक ब्रांड क्रिएट कर दिया, ठीक है। बट एक गलती हुई, उनका एक फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग यूनिट है, एफपीयू जो था, उसमें एक एरर आ गया, एरर रह गया, ठीक है। अब पूरी दुनिया को पता लग गया कि इंटेल इनसाइड में गड़बड़ है। जहां वो अपने आप को मशहूरी देना चाह रहे थे वहां पे अब ढेरों बदनामी होने लगी। You know what Intel had to do? Intel said, bring back all the computers with that particular model of a processor,
Give it back to me, I will give you a new laptop or a new desktop right there. इंटेल ने खाली एक छोटू सा प्रोसेसर बनाया था, दैट वाज 20% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट, बट उसने सारे प्रोसेसर वापस मंगाए, सारे सारे वापस मंगाए, और उनको सबको नया करेक्टेड चिप के साथ वाला दिया. इट वाज अ 5x कॉस्ट टू देम. So don't rely on updates. In product design, in VLSI, whenever it talks about hardware, so come out of the software people, come out of the software mindset. Oh, we will run it again. Can't happen. It's hugely expensive. You will be thrown out of the market. आप bankrupt हो जाओगे. I don't want you to go bankrupt. Target first time right. Okay. Anything else is not acceptable. Anything less than first time right is absolutely unacceptable. सो फूक फूक के कदम रखना है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, एडहेयर करना है. फिर भी कुछ रह गया, एटलीस्ट यू विल नॉट फील गिल्टी कि हमने कुछ मिस कर दिया था. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ कि यार यार ये एक स्टेप सर ने बोला भी था करना है, मैंने मिस कर दिया, एंड देन यू आर गोइंग बैकअप बिकॉज ऑफ इट. वंडरफुल आइडिया, नाउ यू कांट टेक इट टू मार्केट. Someone else does it better and takes it. See, startups and ideas are available dime a dozen, है ना? So people don't invest in ideas. There was one, अभी हम जब इंटरव्यू कर रहे थे इसी कोहॉर्ट के लिए, there was one student from somewhere in Maharashtra. तो उसका ना इंटरव्यू वगैरह हो गया सब. He was not very good. We were in two minds. उसको ऑफर भी करें सीट की ना करें, things like that. तो उसका मेरे पास अभी हमने बस रखा ही था, तो उसका अलग से मेरे पास मैसेज आता है, सर आईपी किसका होगा. मैंने कहा विच आईपी. तो सर मैंने आइडिया दिया तो उसका आईपी राइट किसका होगा. मैंने कहा बेटा आइडिया तो आइडिया है, वो तो रिफाइन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, बहुत कुछ होगा उसमें, प्रोसेस होगा, एंड आप अकेले तो नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चे मिलके काम करोगे, दो तीन लोग होंगे जो एक टीम में होंगे, फिर आप सबका जॉइंट स्टार्टअप होगा. So I had to explain this to him, but the first thing I realized was that many of you are actually coming from this mindset that my idea has value. No, the real value is in execution and execution excellence. And that can come only by following processes. Okay? ये बात ना गांठ बांध के रख लो कि first time right means that you have to follow processes. You will still want to improve, but at least right होना पड़ेगा. उसका improvement हजारों possible है. आप पिछले cohort से पूछो. The way we were conducting that cohort is very different from the way we are going to conduct this cohort. ठीक है? But was that one right? Yes. Each one of those students has told me separately also that sir हमारी लाइफ बदल गई. आप मतलब I can read out some testimonials to you and you will be like wow. Many of them are available on LinkedIn. आप उनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा. So I know I was right. But was that the best? No. There is an improvement possible. So we will have an improvement. वो अलग बात है. But गलती करके अपडेट के ऊपर डिपेंड करना कैन नॉट वर्क फॉर प्रोडक्ट्स. Won't work. Improvements, yes, that is version 2. So you're saying this is feature, this is minimum viable product, but this is low feature product. We'll add more features. We'll learn from this. We'll add more features. We'll add more feedback, more features. भाई आईफोन के इतने हर हर साल एक नया वर्जन आता है, आईफोन का क्यों आता है? ऑब्वियसली कुछ नया ऐड कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं पुराने से. बट क्या एक बार भी प्रोडक्ट में कमी है? नहीं. आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम राइट होना बहुत जरूरी है, फिर इंप्रूव करते रहो. ठीक है? सॉफ्टवेयर उस तरह से नहीं सोचते हैं. सॉफ्टवेयर कहते हैं जस्ट लेट मी मेक समथिंग वर्क, गलती होगी तो विल डू ओवर द एयर अपडेट, दोबारा से कंपाइल कर देंगे ना कोड को.
That can't work with products. With users, they are unforgiving. Are you with me? ठीक है. So PCB assembly, hardware software integration, bring up and test, and then product launch. Again, ये product launch बहुत बड़ा लग रहा है. So I would say pilot product launch. Limited set of customers first. Collect feedback. Improvise. फर्स्ट कोहॉर्ट में 11 लोग थे. इस कोहॉर्ट में ऑलरेडी इस रूम में इस समय 15 लोग से ज्यादा दिख रहे हैं मुझे. और लोग भी जुड़ जाएंगे. सो ग्रेजुअली ग्रो. फाइनली पूरा रूम फुल होगा. होगा. So this is, I'm sharing with you that this is also a product. Certificate program, a course is also a product that I'm offering to you. That CIPD is offering to you. You are the users. And based on the feedback from earlier users, we have improvised this version. But that version was also very good. It did not fail. This version should also not fail. That is how you have to approach any product development. Okay? Now, technology readiness level. How many of you understand what is technology readiness level? TRL. आपने सुना हुआ है पहले? कितनों ने सुना हुआ है पहले TRL? अबे वेबिनार में भी बताया था. आपने तो बीटीपी पोस्टर के ऊपर टीआरएल वैल्यू लिखी होगी. तो फिर क्या लिखेगी? सो व्हेन यू जस्ट हैव एन आइडिया, ओके, आपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व करे और आपको ये आइडिया है, दैट इज TRL 1. ठीक है. देन जब आपने उसका एक टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट कर लिया कि ओके आई विल यूज दिस सेंसर एंड आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट, दैट इज TRL 2. आई विल यूज दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. सपोज आपने कहा कि इस कम्युनिकेशन के लिए आई विल यूज ब्लूटूथ, not Wi-Fi, Bluetooth. So that is TRL 2. Then experimental proof of concept. We already discussed proof of concept. That is TRL 3. Then technology validated in lab. Proof of concept बना लिया और उसको पूरा वैलिडेट कर लिया. जो हमने क्या कहा था, जितने भी क्वेश्चंस हमने लिखे थे कि इस पीओसी को आंसर करने चाहिए, जब वो सब आंसर कर दिए तब 4. जो बीपी वाला वो था वो 3 पे फेल हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी. बना ही नहीं पाए पीओसी. तुम लोगों ने पीओसी के नाम पे कुछ बना लिया, लेकिन हो सकता है यहां फेल हो जाए. करण नहीं सर, नहीं होना चाहिए. ठीक है. जब बनाया तो देखा कि नहीं काम कर रहा, टेक्नोलॉजी पिवट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ सकता है ना. भाई हम इसलिए तो टेस्टिंग कर रहे हैं ना. तो दैट इज TRL 4. TRL 4 अगर आपने क्रॉस कर लिया मतलब आप रीजनेबली मैच्योर हो. क्यों? क्योंकि उसके बाद अब आप उसको रेलेवेंट एनवायरमेंट्स में टेस्ट करने के लिए जा सकते हो. वो भी कर लिया तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. नॉट जस्ट टेस्ट. टेस्ट के अंदर क्या होता है, अभी जब आप कोई सिमुलेशन भी करते हो तो आप क्या करते हो, आप कहते हो इस सिग्नल को यहाँ पे हम हाई लेके जाएंगे, इस सिग्नल को यहाँ पे लो लेके जाएंगे. आप क्या ट्राई कर रहे होते हो कि भाई एक्चुअल में कभी कोई यूजर हाँ करेगा या यस करेगा तो ये सिग्नल हाई चला जाएगा. आपका एजम्पशन है, आपने एक टेस्ट टेस्ट प्लान बनाया था, आपने वो वैलिडेट करा. दैट इज TRL 5. नाउ व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेट इट and you put that thing here now the user will push the button, tuck 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 tuck. Now that yes came 5 times in a row, you didn't have time to process, you can fail. Now you say, oh, once it rises I have to stop taking next trigger until I have complete my processing. You see, the implementation will mature. देखो, ऐसा होना कि यहां पे आपने कुछ सोचा और यहां से आप सीधा वहां चले गए, मैंने नहीं देखा आज तक. हर लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग होती है, मेच्योरिटी आ जाती है. दैट इज द प्रोडक्ट ऑल्सो मैच्योर्स.
Once you are once you're able to demonstrate it to a wide audience in a relevant environment, then you say, okay, now I will make a system prototype. Somewhere in between this, I've moved from that breadboard and evaluation kits into PCBs. I'm already on PCBs. Okay. But now when I talk about system prototype, even if it was a PCB, it was still appearing to be a PCB and I was showing it works. Now, as soon as I say system prototype, now I have enclosed it in its body. And now, whatever, for example, signal drop attenuation would happen because of the body would also happen. Are you able to visualize this? So, I make a system prototype and then demonstrate an operational environment. ठंड में, धूप में, 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ह्यूमिडिटी के अंदर, बारिश में, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट यहीं पे तो ऑपरेट करेगा ना, अगर आपने कुछ आउटडोर यूनिट बनाया है तो. Then system complete and qualified. That is TRL 8. And TRL 9 is now that complete system is ready to be validated in the operational environment. पूरा का पूरा हमने ऑपरेट कर दिया है, वैलिडेट कर दिया है कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में इट वर्क्स. That is TRL 9. But that is not the product. Product has to be manufactured. So you look at manufacturing readiness level, MRL. That TRL 9 is somewhere here, MRL 4 और 5 के बीच में कहीं पे, कि हाँ सिस्टम के अंदर दिस वर्क्स, बट नाउ आई नीड टू सी इफ आई कैन रियली मैन्युफैक्चर इट एट स्केल. दैट इज वेयर दे विल से, ओके, डज माय मशीन सपोर्ट दिस काइंड ऑफ रिफाइंड सोल्डरिंग. मैंने इन दो आइटम्स को इतना पास पास रखा और मेरे को इस हाइट के अंदर उसको कंप्रेस करके पैकेज करना है. Does my manufacturing setup support that? That is the capability of the manufacturing setup now. 5. Then, हाँ, it supports तब ऑप्टिमाइज करना, कि देखो किसी भी चीज को एक बार कर देना एक बात है, बट उसको रिपीटेबल वे में बार बार बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. खाने के टर्म्स में देखते हैं कौन कौन कुछ कुकिंग जानता है. गुड. तो आप अगर खाली अपने लिए खाना बना रहे हो तो एक तरह से आप काटोगे सब्जी को एंड इट्स ओके, कोई पीस थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा, बट स्टिल टेस्ट के लिए आपको करना था, टेस्ट इज गुड. ना सपोज अब आपको ये 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है हलवाई की तरह, विल द सेम थिंग वर्क? नहीं ना, अब काटने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा. सो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ताकि आई कैन गो एट स्केल. कि सिंगल सिंगल बनाना इज वन थिंग, मैं 3D प्रिंट करके बना रहा था, बट अब मेरे को शीट मेटल करना है, मेरे को मोल्ड कास्ट कास्ट करना है. मोल्ड कास्ट भी ऐसा करना है कि फटाक 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 से निकले. आर यू एबल टू सी दिस? सो दैट इज process optimized, manufacturing process optimized for larger scale production, MRL 6. Then capability and rate confirmed. I wanted a production rate of 100 cars per month. Do I have the capability? Can I really make 100 cars per month? Does my system allow? Does my space allow? Where will I store those cars? That is why automotive में ना बहुत important होता है zero fail at 0 kilometers. What does that mean? That when the car is ready, it should just move. At ready, there should be zero fail. Why? मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर निकले, उसके बाद 100 मीटर पे फेल कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फिर मैं उसको गैराज में लेके जाऊंगा. अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में फेल कर गई तो मेरा पूरा प्लांट जाम, पूरा प्रोडक्शन स्टॉप. एबल टू सी दिस? सो जब आप
डिजाइन करते हो, सोचते हो इन चार बातों के बारे में. But all of that you have to think of when you talk about product. Hmm? Then full production process qualified at the rate that I wanted. And then I say, okay, अब मैं scale पे produce कर रहा हूँ. Now, to reach this stage, you will probably take more than a year, more than 1.5 years also. But we can definitely come to at least this stage or MRL 3 or 4 के बीच में within 6 months. But it is important for you to understand that this is still job half done. बहुत लोगों को लगता है कि हाँ भाई मैंने देखो ये बना के दिखा दिया, अब मेरी स्टार्टअप की वैल्यूएशन ये हो गई. नो, so many things you will need to go back to the drawing board because something will not work in MRL 5, 6, 7 or 8. You have to redo. And it is important for you to realize this now because नहीं तो कल को आप बहुत मेजरली डिसअपॉइंट होगे. आर यू एबल टू सी दिस? अगर आपको पता भी नहीं है कि क्या पूरा प्रोसेस है और आप 6 महीने का समझ के हाँ मेरी स्टार्टअप 6 महीने में इट्स गोइंग टू बी दिस वैल्यू, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. कोई भी नहीं होती. आपकी सॉफ्टवेयर स्टार्टअप भी नहीं हो पाती है बाय द वे, हार्डवेयर भी नहीं हो पाती. आर यू विद मी? सी, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप जितना आसान होता है ना बनाना, उतना ही आसान उसको रिप्लेस करना भी होगा आपके कंपटीशन के लिए. डू यू सी दैट? हार्डवेयर स्टार्टअप क्योंकि बनाना मुश्किल है, अगर आप फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच प्रोसेस एडहेरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, नो वन कैन रिप्लेस यू. डू यू सी दैट? इट्स अ मोड दैट इज irreplaceable. इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग मोड फॉर यू. एंड क्योंकि हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, दैट टेक्स मी टू दिस विच इज इन्वेस्टमेंट रेडीनेस लेवल. जब हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे आते हैं तो हमने क्या कर लिया, हमने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को वैलिडेट कर लिया है, हमने प्रोटोटाइप का लो फाइडेलिटी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वगैरह कुछ बना लिया है. देन वी आर रेडी टू बी इन्वेस्टेड इनटू. दैट इज व्हाट इज IRL 4. देखो 3 था ना, 3 से नीचे सब कुछ ही बड़ा फजी है. 3 से नीचे जब तक आप हो तो आपको लोग चिल्लट पटट दे देंगे और कहेंगे हाँ भाई खेल लो. अभी आप 3 से नीचे ही हो ऑब्वियसली. बट जब आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब हम मार्च कैपिटल की बात कर रहे हैं, आपका POC जब रेडी होगा तो आप ऑलरेडी यहां पे आ जाओगे IRL 4. दैट इज व्हाई आई हैड पुट दैट देयर कि वी विल स्टार्ट टू पिच once we reach IRL 4 level, because that is the best time to get investors hooked. You have a promise and you've still not failed per se. ठीक है? Then you, but इसके यहां तक आने के लिए भी we will first need to do market size, competitive analysis. We will need to have our business model canvas. Business model canvas पता है आप सबको? Business model canvas. No one has heard about it? ये आज का होमवर्क है फिर. Just go check out what a business model canvas is. Next time जब मेरा सेशन होगा I will ask you. ठीक है? It's very important. Because as I said, I want all of you to think like startups. आपको नहीं बनाना स्टार्टअप, बाद में मत बनाना, but at least you should know what it takes. You will start to respect them so much more and not like अच्छा ये तो कुछ स्टार्टअप कर रहा है. Startup is not a simple thing, and especially making it a success, it again requires a process. So business model canvas is the first step of that process. So validate product market fit is IRL 5. Validate revenue model. Anyone invests in a startup to earn money? So for that, the startup should itself earn money. So आपके पास एक बिजनेस मॉडल, सबसे पहली चीज आपने बिजनेस मॉडल कैनवस बनाई, उसको वैलिडेट तो करना है ना, रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो वैलिडेटिंग द रेवेन्यू मॉडल फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द BMC. देन जब तक आपका हाई फाइडेलिटी प्रोटोटाइप बनेगा, दैट इज व्हेन यू बिकम IRL 7. Beyond that, you validate value discovery, delivery.
कि भाई हमने सोचा तो ये था कि हम ये वैल्यू अपने यूजर्स को देंगे, उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इज इट रियली हैपनिंग? नाउ, do you think you can find this out within 2 weeks of your product launch? No. Feedback, sustained feedback validates. Not just one, not just the users. आपके partners का feedback. How are they feeling about it? Are they stretched too thin? Have their resources been compromised? All that has to be seen. So, value delivery is IRL 8. IRL 9 is that I have identified and validated all the metrics that matter. ROI, शेयर होल्डर्स के लिए बेसिकली कुछ मेट्रिक्स हैं, यूजर्स के लिए कुछ अलग मेट्रिक्स हैं. ओवरऑल वेरी वाइड रेंज गैमेट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट. तभी सब इन्वेस्टर विल वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड इन अस, और न्यू इन्वेस्टर्स विल कम एंड रेज आवर वैल्यूएशन. ठीक है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बाय द एंड ऑफ दिस 6 months we should be somewhere between IRL 5 and IRL 6, बिकॉज हम लॉन्च करने की सिचुएशन में होने चाहिए. रेवेन्यू आना तो उसके बाद की बात है ना. तो हमारे लिए IRL 5 से IRL 6 में जाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा. दैट्स फाइन. वी आर स्टिल वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वी विल गेट दैट टाइम to build our startup from there on. But it is very important for you to realize this is not a service startup. This is not a software startup per se, because those startups can also be replaced very fast. This is a hardware startup. आपको कोई replace नहीं कर सकता इतने आसानी से. Are you with me? Any questions here? So, ये 3 slides, those of you who watched the webinar उसमें भी थी. But you see there is so much in these 3 slides. किसी भी चीज को आप इसी डेप्थ में समझ सकते हो. बहुत बार आपको लगेगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट आता है, but then you just go a little deeper and you will realize, oh, there's an entirely new world to know about. So never stop short. इसलिए हम आपको हर रोज फ्री टाइम दे रहे हैं. जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, यूज दैट फ्री टाइम कलेक्टिवली टुगेदर. इसी तरह से अपना यार ये बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं जरा चेक करता हूँ क्या है, डिस्कस करो आपस में, हैव दोस डिस्कशंस, बिल्ड अ नेटवर्क अमंग्स योरसेल्फ. क्योंकि कल को जब आप में से किसी को भी कोई भी इशू आएगा, अगर आप सबका आपस में नेटवर्क होगा, फॉरगेट अबाउट योर टीम ओनली, सबका आपस में नेटवर्क होगा, तो यू ईच ऑफ यू कैन हेल्प ईच अदर टाइड ओवर दैट चैलेंज. आर यू विद मी? सो सी वी हैव टू बी लाइक, वो आपने स्विमिंग करके एक छोटा सा एनिमेशन है 3-4 मिनट का, देखा है क्या? दूरदर्शन पे आता था पहले जब हम छोटे थे, तो तुम लोग तो नहीं थे तब. तो ये एक और असाइनमेंट है, स्विमी करके, एक यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा. चलो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तब दिखाऊंगा. स्विमिंग इज अबाउट स्मॉल फिश इन अ बिग ओशन, वेयर बिग फिश ईट स्मॉल फिश. बट द स्विमिंग, जो छोटी सी फिश है, ये कुछ जुगत लगाती है, एंड इट scares away the big fish and thrives as a community. So we have to be like them. Even if we are young, even if we are small, each one of you may be small, but together you should be a force to reckon with. ठीक है? तो as a cohort, you should be such closely knit that बस किसी को कुछ challenge आया, all of us are together handling it. At least the 6 months, but I would say in life. ठीक है? चलिए. There are no further questions. We'll close the session. आपका next workshop यहीं पे है. That is on 3D printing, additive manufacturing.
Okay, now that workshop will not be available online, so I'm anyways closing the online call also there. And आजा भाई, we'll close the call now. अबे, अरे तो stop share, then stop recording.